They're joining very slow. Yes. Fine, I think we should. I'm in first class. Yes. I'm in first class. Everybody has joined late. Yeah, but you all need to join on time, otherwise we are losing time. Fine, let us start the discussion. We were doing the decomposition reactions yesterday, and we have done two types. The first one was thermal and the second photolytic. And today's discussion about electrolytic dissociation will be very important, because it also includes the experiment which you need to understand. So many observations in this electrolytic dissociation which we'll be getting, and every observation is very important. So we'll be starting. I hope you all are sitting with your notebooks, because the equations and the diagrams you all need to. Good. So everyone need to have their notebooks with them. If you don't have, please kindly arrange it. So one thing, please add on in the equations that we did yesterday. Kal humne AgCl और AgBr, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इन दोनों के रिएक्शंस लिखे थे, बट इनके यूजेस नहीं लिखे थे. सो प्लीज राइट द यूजेस. बोथ हैव द सेम यूज. बोथ आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. ठीक है, उसमें आप यूज ऐड कर लोगे. फिर उसके बाद आज इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, सॉरी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वी डू. जय हिंद एवरीवन. Ma'am, please repeat the uses. Who is 1, 2, 3, 4, 5? Kindly rename. Okay, so I hope you all have written the use of AgCl and AgBr. Both are used for black and white photography. Okay. And next, we are going to start with electrolytic decomposition reaction. Look, we have already discussed that these electrolytic decomposition reaction occurs in the presence of electricity. So, hota kya hai? You all know that every compound is made up of two different elements. And in the ionic compounds, if we see, those two different elements are combined just because they are opposite charges. एक कोई उसमें cation होता है, एक anion होता है. So what we do through electrolytic dissociation, we separate the cation and anion by supplying the electricity. ठीक है? तो first let us understand how the connections are made. So first electrolytic dissociation that we'll be doing is for NaCl. In NaCl, which are the two ions? Anyone? Which are the two ions? Sodium and chlorine. Very good. It is sodium and chlorine. So, if in the electricity circuit, one of the terminal is positive, one of the terminal is negative. Okay, and these two terminals will be connected to the carbon rods. इन दोनों टर्मिनल को हम कार्बन रॉड से कनेक्ट करेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. लेट मी शो यू हाउ. Suppose in this particular box or beaker, let us take a beaker, we have NaCl. Okay, NaCl is the other present. So what we'll do, we will connect two rods, two carbon rods will be connected to a battery. We'll be connecting it to a battery.
positive terminal of the battery will be considered as, have you listened about electrodes? They are of two types. One is anode Cathode and anode. cathode. Ma'am, we have to note this Cathode one. is the negative electrode. Ma'am, The positive electrode is anode. So the one which is connected to positive terminal will be the anode. And the one which is connected to the negative terminal of the battery is cathode. Now we know that ma'am, we have to note. Huh? Yes, Ma'am, we please. have to note in copy. Ma'am, we have to note in copy. This one. Yes, but I will tell you when to note down. जब note करना होगा, I will tell. Okay. So look, इतना सबको समझ में आया? The carbon rods are electrodes. दो इलेक्ट्रोड है, एक जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको एनोड बोलते हैं, और दूसरा जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम कैथोड बोलते हैं, राइट? एंड नाउ NaCl contains a positive sodium ion and negative chloride ion. ठीक है? Again a very important fact, please listen carefully, कि जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है इसमें जो हम यहाँ पे सोल्यूशन लेते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. आई एम राइटिंग इलेक्ट्रोलाइट. Now this electrolyte has to be either in an aqueous state or molten state. यानी अगर कोई वो कंपाउंड है तो उसको हम या तो वाटर में मिला के डिसॉल्व करके ले सकते हैं या तो हम उसको गला के ले सकते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज उसमें सेपरेशन करने के लिए हमें वो लिक्विड फॉर्म में चाहिए. NaCl का पाउडर हम नहीं डाल सकते. आर यू गेटिंग दिस? Ma'am, Ma'am, Yes, once more what you have Ma'am. told. sure, ma'am, sure. which rod you have taken? Ma'am, which rod you have taken in this solution? Which rod you have taken in? Ma'am, NaCl, ma'am, you have making a rod. Yeah. Copper rod. No, carbon rods. Carbon. Ma'am, but why? See, Ma'am, but why we are using the carbon rod only? Why it not is iron and graphite. this? It is graphite because of its good conducting properties. We choose graphite. It is carbon. Carbon का कौन सा फॉर्म है? Mainly we take graphite. Okay. Any other question? It is very important part, so please ask your questions wherever you don't understand. As Vartika asked me to repeat, I am repeating what I have been told till now. So Vartika, in decomposition reaction, we know कि हमें एक particular compound को तोड़ के उसके दो से ज्यादा या दो products बनाने होते हैं. So we have discussed two ways of decomposition, that is thermal and photolytic. Third one is electrolytic decomposition, जो कि electricity के presence में होता है. तो हम यहाँ करते क्या है, हमें जिस भी compound में से दो parts separate out करने हैं उसको हम या तो aqueous state में या molten state में लेते हैं. Aqueous state मतलब उसको पानी में मिला के, लाइक अगर NaCl का सेपरेशन करना है तो आप उसको वाटर में लेके करोगे, राइट? या फिर कुछ केसेस में हम मोल्टन स्टेट करते हैं, दैट मींस हम उसको गला के लेते हैं बिकॉज हमें उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना है. टिल हियर एम आई क्लियर? Ma'am, where? Yes, ma'am. Ma'am, where the separation part has been done? बेटा अभी हम सेपरेशन में नहीं पहुंचे, रुक जाओ. फिर अब आगे क्या होगा, जब हमने
इसको aqueous state में ले लिया है, once we have taken it in the aqueous form, next what we'll be doing is we will be having two rods, दो कार्बन रॉड जो कि मेनली ग्रेफाइट होता है, राइट. वी विल बी टेकिंग टू कार्बन रॉड्स जो कि मैंने ये बनाए हैं, ये दोनों कार्बन रॉड्स हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड, ठीक है, दिख रहा है सबको इलेक्ट्रोड लिखा हुआ, राइट. नाउ दीज इलेक्ट्रोड्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, एनोड एंड कैथोड. The one which is connected to the positive terminal of a battery is anode. आप देखो इधर से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है उसको मैंने एनोड लेबल किया है, और दूसरा जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको मैंने कैथोड मार्क किया है, राइट. सो इलेक्ट्रोड्स हैं कार्बन रॉड से बने हुए, एंड इट डिपेंड्स कि वो एनोड या कैथोड होंगे, किस पे डिपेंड करता है, विथ विच टर्मिनल दे आर बीन कनेक्टेड. ठीक है, अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो वो एनोड है, अगर वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो वो कैथोड है. सो द टर्म्स विच आर वेरी न्यू फॉर यू आर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसके अंदर जो हमने एक्वस सोल्यूशन लिया है इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, राइट. सो द टर्म्स आर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड. Positive electrode is anode, negative electrode is cathode. Till here am I clear? Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. Fine. So अब क्या होगा, हम यहाँ पे एक स्विच भी बना लेते हैं जो कि अब तक खुला था, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही थी, ठीक है. अब इस स्विच को हम क्लोज कर देते हैं. Once you close the switch and now the electricity is passing. जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, सो एनोड एंड कैथोड विल कम इन देयर रोल्स. इसका इफेक्ट क्या होगा, ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइट में NaCl लिया है जिसमें एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है, Na प्लस है और Cl माइनस है, तो Na प्लस किसके तरफ जाएगा, कैथोड नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है एनोड. सो Na प्लस किसके तरफ जाएगा, मैम पॉजिटिव. Na प्लस है, वो खुद भी Negative. प्लस है तो मैम वो नेगेटिव. मैम वो नेगेटिव से अट्रैक्ट हो. यस, इट विल मैम बी अनलाइन विल अट्रैक्ट. अट्रैक्ट ईच अदर. Yes, unlike charges attract. So Nikhil, what will happen? Na message, Na plus है, वो खुद भी पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो सारा Na जाके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा ओवर दिस, एंड सारा Cl यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाएगा, राइट. सो हमें क्या मिला, NaCl is being broken down to Na plus and Cl minus. So इस तरह से इसका इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हुआ. Are you all getting this? Is it simple? यस मैम. यस. Yes. Good. अभी हम इसका नोट्स लिख लेते हैं एंड इसके बाद वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, विच इज डबल इम्पोर्टेंट. वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में ना बहुत सी अलग चीजें होंगी, बिकॉज वहां पे गैस अलग करनी है हमको. यहाँ पे तो सॉलिड्स थे तो वो लाइक गैसेस के लिए हम टेस्ट ट्यूब को लगा सकते हैं फॉर कलेक्टिंग इट. यहाँ पर भी जो क्लोरीन होगा वो गैसियस फॉर्म में निकलेगा, ठीक है. बट वाटर वाला एक्सपेरिमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज वहां पे दो दो गैसेस रिलीज हो रहे हैं और दोनों को सेपरेट आउट भी करना है हमें, ठीक है. सो फर्स्ट वी विल मेक नोट्स ऑफ दिस एंड देन वी विल बी मूविंग टू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग. आपने यूज लिख लिया था ना AgCl AgBr का, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Used for black Good. and white photography. ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. गुड. अब इसके बाद हेडिंग लिख लेंगे सब, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. रिटर्न मैम. Done? Okay. Then Yes, ma'am. write the reactions where the reactions in which we use electricity .
The reactions in which we use electricity for the decomposition are known as Ma'am, for the decomposition. The reactions in which we use electricity for the decomposition are electrolytic decomposition reaction. मैं नोट्स आपको सेंड ही करूंगी, बट अभी क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जहां पे हमें तुरंत समझ के लिखना है, इक्वेशंस लिखने, दैट इज व्हाई आई एम डिक्टेटिंग. आगे लिखिए, दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट. मैम लिविंग वन लाइन. नहीं उसी में लिखो, दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट by passing electricity in the molten state, मैं लिख देती हूँ molten, or aqueous state. In the molten state, Ma'am, after passing electricity through the molten state or aqueous state solution. In bracket write electrolyte. इस solution को हम electrolyte कहते हैं. एक्चुअल में पता है क्या, ये जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे इलेक्ट्रोलिसिस, ये हमारे क्लास 8 में भी था. क्लास 8 में अगर आप लोग को याद होगा, एक चैप्टर हम लोग नहीं कंप्लीट कर पाए थे. दैट वाज दिस, where we had to study electrolysis. Okay, done? yes. yes, ma'am. Fine. Now write down electrolysis of NaCl. First example करके लिखो electrolysis of NaCl. Make the diagram. Diagram या तो आप लोग बाद में बनाओगे या अभी बनाओगे? Time taking है. मैम नाउ. Ma'am, already made. Now, ठीक है, जल्दी से बना लो. By the time I'm taking attendance also. Attendance मैं लास्ट में भी लूंगी. मैंने देखा है तुम लोग बहुत लेट आए हो, बहुत लोग. नकुल भी बहुत लेट आया है. I was noticing. So next class से please be on time, and I'll be taking attendance at the end also. Make it fast. I'll be waiting for only Done. 2 minutes. I'm done. Done? Good. नो मैम. I'm done. Good. Those who have done will write the equation now. Someone has joined the Ma'am, class. done. Good. चलो अब इक्वेशन लिख लो. NaCl ब्रैकेट में AQ, that is aqueous, ब्रैकेट में AQ
gives Na and Cl2. इसके पहले भी कुछ रिएक्शंस होंगे जो कि एनोड और कैथोड पे Ma'am, हो रहे please होंगे, repeat one time. क्योंकि आई एम राइटिंग बेटा, मैं लिख रही हूँ, मुझे बोर्ड पे थोड़ी स्पेस चाहिए थी, मैं लिख रही हूँ. On the arrow you will write electricity. Arrow के ऊपर लिखोगे electricity. Should I erase the diagram because I need some space? Yes, ma'am. No, Yes. ma'am, wait for. Yes. Yes, ma'am, done. अब आप लोग लिखोगे अदर रिएक्शंस. देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अदर रिएक्शंस, बट समझने के लिए हम लिख सकते हैं. अदर रिएक्शंस क्या है, कुछ देखो ये डायरेक्टली एक बार में नहीं हुआ है, आपको भी पता है ये स्टेप्स में हुआ है, तो वी विल राइट दो स्टेप्स. सो अदर रिएक्शंस में आप पहला लिखोगे रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या रिएक्शन हुआ. रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या हुआ होगा, जैसे ही NaCl आया और इलेक्ट्रिसिटी पास की, इट ब्रेक्स डाउन इनटू Na+ और Cl-. Ma'am, repeat. दूसरा, Ma'am, Yes. repeat one more time. First. बेटा written सी रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलाइट. अदर रिएक्शंस में हम लिख रहे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या रिएक्शन हुए. इलेक्ट्रोलाइट पे पहला रिएक्शन हुआ कि NaCl टूट गया Na+ में और Cl- में. ठीक है. अब कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड मतलब नेगेटिव वाले पे, वहां पे कौन आया है Na+. तो जब Na+ यहाँ पे आया तो ये तो आयन है, हाउ इट विल टर्न टू Na. इसको Na बनने के लिए क्या चाहिए, बोलो, इसको Na बनने के लिए क्या चाहिए, Na+. नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चाहिए, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, और कैथोड इसको वो इलेक्ट्रॉन देगा. सो ये यहाँ पे आते ही इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा Na. ये हुआ कैथोड पे. सिंपल है, एनी डाउट? नो मैम. गुड. अब तीसरा रिएक्शन होता है ऑन एनोड. एनोड पे गया Cl-. अब Cl- प्रोटॉन तो नहीं ले सकता ना, बिकॉज प्रोटॉन तो रिलीज होता ही नहीं है. सो ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा. सो इसमें क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन विल गो आउट, माइनस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन विल गो आउट एंड इट विल गिव Cl. बट ये सोचो क्लोरीन ऐसे स्टेबल नहीं होता, वो Cl2 फॉर्म में होता है. So we will write 2 here and 2 here. Ma'am, then in equation also we have to write Cl2, no?
यहाँ Cl2, अब इक्वेशन में 2 CH निकला होगा, तो यहाँ पे भी 2 करेंगे। अब पूरे को बैलेंस कर रहे हैं। Cl2 चाहिए था हमको, कहाँ से 2 मिला है, क्योंकि शुरू से 2 आया। अब ये 2 तभी होगा जब ये 2 होगा, और जब ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। So now balance all 3. 2 NaCl, 2 Na plus, 2 Cl minus, 2 Na plus, 2 Na, 2 Cl minus and Cl2. यानी 2 NaCl ब्रेकडाउन होंगे तो 1 क्लोरीन बनेगा, पर 2 NaCl breakdown forms 1 chlorine but 2 sodium atoms. Very important to understand this. यहाँ पे ना डायग्राम में यहाँ पे मेंशन कर दो कि यहाँ पे Cl माइनस आया है, Cl माइनस, और यहाँ पे Na प्लस आया है, ऐसे करके लिखा है। Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we will do electrolysis of water, और डायग्राम आप मेरे साथ साथ बनाते चलोगे, जैसे जैसे मैं समझाते चलूंगी आप डायग्राम बनाते चलना, ठीक है? इसमें भी सेम चीजें होंगी। आई एम इरेजिंग इट नाउ। So here what will happen, इसका डायग्राम बहुत अच्छा सा आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है? सो बुक अगर सामने है तो बहुत अच्छी बात है। We again take a beaker, in this beaker, this is a plastic beaker. Why we take plastic beaker? Because इस केस में ना हमको उल्टा सेटअप करना पड़ेगा, बिकॉज गैस को कलेक्ट करना है हमको टेस्ट ट्यूब में, तो टेस्ट ट्यूब को उल्टा रखना पड़ेगा, तो इस केस में सेटअप पूरा उल्टा होता है, राइट? सो 2 holes are made in the plastic mug so that here the electrodes can be fixed. दोनों इलेक्ट्रोड्स को इस तरह से फिक्स किया जाता है, ठीक है? अब इन इलेक्ट्रोड्स को किससे कनेक्ट करना है टू गेट द करंट? Battery. Ma'am, battery. Right? So we will connect it to the battery. यहाँ पे एक बैटरी बना देते हैं। आप चाहो तो सिंबल भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिंबल ही बना देंगे, चलो, क्योंकि पिछले वाले में सिंबल बनाया था ना, सिंबल बना देते हैं। सो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, which will be indicated this way. दूसरा वाला इस तरह से। The one which is connected to the positive terminal, and this is the one which is connected to the negative terminal. So इसका नाम क्या है? The negative terminal one. Cathode. Cathode. And the one which is connected to the positive Anode. terminal. इतना सेटअप बिल्कुल सेम था जैसा कि हमने उस केस में किया था। Now what we are going to do, हमें वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। So इसके अंदर हम पानी भरेंगे, पानी थोड़ा ज्यादा भरेंगे so that दोनों इलेक्ट्रोड्स उसमें डूबे हुए हो। And then we will invert the test tubes. टेस्ट ट्यूब्स भी पानी से भरे होने चाहिए। इन दोनों के ऊपर एक एक टेस्ट ट्यूब लगा देंगे, और इन टेस्ट ट्यूब्स में भी पानी भरा हुआ है, राइट? आप लोग बनाते हुए चलिए साथ साथ में।
exist in this. Yes, beta. निखिल प्लीज थोड़ा तेज बोलो, समझ नहीं आ रहा. Can we make from book? Yes, you can. अब देखो, in this reaction there is a little difference. यहाँ पे हम water के अंदर थोड़ा सा acid मिलाते हैं, H2SO4. Can someone guess why do we add acid? कोई guess कर सकता है? Anyone? नहीं? Ma'am, because acid is good conductor of electricity. Very good acid. अब देखो, water being a poor conductor may not conduct electricity very easily. तो इसको थोड़ा acidified कर देंगे हम, ताकि इसमें conduction अच्छा हो. Because separation के लिए हमें conduction चाहिए. Okay, so what is being done? This class will continue till 9:55. Let me tell you. 2 बच्चों ने क्लास छोड़ दी है जल्दी. And I'll be seeing कि वो कौन है by taking attendance once again. Yeah. See, अब इसमें हम H2SO4 मिलाएंगे और reason क्या है? इसको एक good conductor बनाने के लिए, because it is right now not a good conductor because it has a water. Water is a poor conductor of electricity. So यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं as electrolyte? लिख दो acidified water. क्या लिया है हमने? Acidified water as a electrolyte. As a electrolyte. Now, as soon as the switch is on, तो क्या होगा? Electricity pass करेगी, and the bubbles will be noticed on the electrodes. Electrodes में bubbles आएंगे, bubbles आ रहे हैं मतलब गैस है, गैस रिलीज हो रही है. दोनों ही तरफ क्या होगा? पानी का लेवल टेस्ट ट्यूब के अंदर कम होने लगेगा. क्यों कम हो रहा है? Because water is forced out. Water is forced out because here a gas is filled. Here a gas is filled, right? And इसमें भी वही होगा, इसमें से भी water निकलने लगेगा और गैस बनने लगेगी. देखो, एक में थोड़ी ज्यादा गैस फिल होगी, एक में थोड़ी कम गैस फिल होगी. इसका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगी. अब आप मुझे ये बताओ, जब सेपरेशन होगा H2O का, तो H जो है वो प्लस है, O जो है वो माइनस है. तो H प्लस किधर जाएगा? एनोड पे या कैथोड पे? Cathode. कैथोड पे. तो यहाँ पे H2 gas gets collected and here oxygen gas. Because it is negative, it will go towards anode. Now, अब यहाँ पे गैस ज्यादा है और यहाँ पे गैस कम है. इसका रीजन ये है कि जब वाटर ब्रेक होता है, each water have 2 hydrogens and 1 oxygen. So hydrogen का वॉल्यूम जो है वो हमेशा डबल होगा. After the electrolytic decomposition of water, the volume of hydrogen being collected will be always double than the volume of the oxygen. Extremely important question. 2 क्वेश्चन अभी तक extremely important बता चुकी हूँ. पहला, एसिडिफाइड क्यों करते हैं? दूसरा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम हाफ क्यों है? Because each water molecule has double hydrogen present, right? इसको हम अभी लिखेंगे भी under the notes. Maybe in the next class, because आज की क्लास में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं हमारे पास. So till here am I clear? Yes, ma'am. सेकेंड क्वेश्चन बेटा कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल क्यों है? हाइड्रोजन, इसका आंसर मैं लिखवाऊंगी आपको, ठीक है? सो डोंट गेट वरीड. अब फट से इनके रिएक्शंस हम लिख लेते हैं ताकि हम क्लास एंड कर पाए.
So please write down reactions in electrolyte. पहले complete reaction लिख लो, फिर electrolyte करेंगे. Reaction क्या है? H2O will break down. H2O liquid है, will break down into H2, which is gas, and O2, which is also gas. To balance this, you have to put 8 minutes. दो हाइड्रोजन है, H2NO2 बनाना पड़ेगा इसका. 2 हो गया ऑक्सीजन और ये 2 हो जाएगा. Ma'am, 2 hydrogen. Now it is balanced. Yes, beta. ये रिएक्शन होने के बाद आप लोग लिखोगे अदर रिएक्शंस. और क्या रिएक्शन हो रहे हैं हम जल्दी से लिख लेते हैं. Ma'am, we should write H2O plus H2SO4 ना, or acid. नहीं. H2SO4 वहां पे रिएक्ट थोड़ी करेगा जाके. वो सिर्फ वहां पे ऐड हुआ है थोड़ा सा, जो it will we have not added in a extreme amount. हमने बहुत कम अमाउंट में डाला है जो कि उसको थोड़ा सा आयनाइज करने में हेल्प कर रहा है. राइट. सो we are doing decomposition. नो, हमें वाटर को ब्रेक करना है और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी पास होगी. ओके. सो H2SO4 का काम वहां पे सिर्फ कंडक्शन प्रोवाइड करना है. Write other reactions. First, in electrolyte. ये reactions लिखने के बाद हम क्लास को एंड करेंगे और कल इसके observations लिखेंगे. I mean the next class में इसके observations, और I will try that I send the observations and you all write it. So electrolyte में क्या हुआ है? Water breakdown हुआ है. Water breakdown होगा. हमने 2 water लिया है, 2H2O will break down into ions. 4H plus, देखो 4H plus है और 2 ऑक्सीजन है. 2 O2 minus. Okay. This is a reaction in electrolyte. Ma'am, Yes. ma'am, you forgot to put symbol of electrolyte in equation. Beta electrolyte. Ma'am, in the reaction of water. Reaction in electrolyte. Anode पे ऑक्सीजन Ma'am, है. you written there 2O2. 2 O2 minus 4 electrons will give O2. Ma'am, your video is paused. एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. H2, 4 हाइड्रोजन आयन, 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे क्योंकि H2 बनना है. H2. So these are all the reactions. Observation इस एक्सपेरिमेंट से 4 इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से 2 मैंने आपको बता दिए हैं, 2 मैं आपको नोट्स में भेज दूंगी. अच्छा, फट से डिस्कस कर सकते हैं ना? Should we discuss the other? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. ठीक. तो इस एक्सपेरिमेंट का थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हमको 2 गैसेस मिल गई, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी गैस किस में है? सो हाइड्रोजन वाले टेस्ट ट्यूब को जब निकाल के, जब थंब से ऐसे हम प्रेस करके लेकर आते हैं, उसके पास जब बर्निंग कैंडल लेके आते हैं तो Pop-up sound.
Yes. एंड जब ऑक्सीजन वाले टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आते हैं तो क्या होता है? हाँ, ओके, इट विल स्टार्ट बर्निंग इवन विद अ नॉर्मल फ्लेम, उसकी हाई हो जाती है. These are the other two observations कि ऑक्सीजन के साथ the flame becomes very high, which is a supporter of burning or combustion, and हाइड्रोजन के साथ एक pop-up sound आता है. So ये observations मैं आपको as a notes send कर दूंगी आज. So please आप उसको कॉपी में लिख लेना, ठीक है? क्योंकि क्लास में हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे नोट्स लिखने में. Is it okay? Yes. अटेंडेंस एंड देन यू ऑल लीव. ठीक है, 1 मिनट बाद में आपको बोलूंगी लीव, तो आप लोग लीव कर देना. Yeah, you all may leave now. Thank you so much. Jain ma'am. Jane ma'am. Goodbye. Jai ma'am. Jai Hind, goodbye.